वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। और जो भी आज देख रहे हैं आप, सारा इंडिया के अंदर जो हालात बिगड़ रहे हैं, और आप सभी जानते हैं कि किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, किसानों का आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है भारत के अंदर जो उसने पूरा सिस्टम हिला कर रख दिया है। तो किसानों का आंदोलन ने जो है आने वाले वक्त में क्या करना है तो आबाद की बात है, लेकिन किसानों और जवानों की बात हम जो करते हैं वो सारे जो है जय जवान जय किसान बोला सभी ने, और जय जवान को जवानों को भी बोलकर परेशान किया और जय किसान बोलकर भी परेशान किया। तो इसमें जो है हम ये नहीं कहते कि जवान जो काम कर रहे हैं वो गलत है, सही है, लेकिन वह सब बहुत सारे जवान ऐसे हैं जो हकीकत को नहीं जानते हैं, जो हकीकत से बहुत दूर हैं बहुत बार। लेकिन काफ़ी जवान ऐसे हैं, नौजवान जो जो मिलिट्री में काम कर रहे हैं, उनको हकीकत का पता लग चुका है कि हकीकत में क्या चल रहा है। तो हमारे सामने दो वीडियो आए हैं। एक गाजीपुर से निकले हैं, जो 5-6 उसमें फौजी हैं अंदर बैठे हैं, इसमें वो दिखाएंगे हम वीडियो। एक वीडियो आया है एक जो लद्दाख, मेरे ख्याल से चाइना बॉर्डर के पास में, जहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है 10 डिग्री, वहाँ 15 डिग्री जो टेम्परेचर है वहाँ का। तो वीडियो दिखाते हैं पहले जी। साध संगत जी, फतेह प्रवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब मगर पैंदी बर्फ देख रहे हो, -10 डिग्री है। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ बर्फ ਦੇ ਵਿੱਚ 10, 15, 20, 25, 40 डिग्री तक ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ WhatsApp ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀਏ। ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਦਿੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਂਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਦਲਾਲ, ਗੱਦਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਦੱਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਸ ਬੜਵੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ? ਹੈ ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਐਂਕਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੀਰੇ, ਫੌਜੀ ਦੇ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੁੱਕੋ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਆ, ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਜੱਥੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰੇ ਰਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 10, 20, 50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ 10, 20, 50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਚੱਪਲ ਹੀ ਚੱਪਲ ਨਾਲ ਕੁੱਟੂਗਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਛੇ 'ਚ ਨਾ ਘਸੀਟਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕੀ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ।
ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਵੀਰੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਗਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਲਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਗਵਾਚੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਰ ਭਾਰਤ ਆਜ ਤੱਕ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਦੀਪ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਚੈਨਲ, ਉਸ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਜਾਂ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਾਪੀ 4 ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਿਓ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ ਨਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਸਮ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਪਲ ਫੇਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਪਲ ਫੇਰਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਘਸੀੜਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੂੰ ਫੌਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਗਏ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਤੇ। और मैं बोलूँगा उसमें 1 मिनट के लिए। मेरी तरफ करो थोड़ा, मैं बोल देता हूँ। जय हिंद साथियों, हमारी टीम गाजीपुर बॉर्डर से सिंगू बॉर्डर हरियाणा की तरफ 5 गाड़ियों को लेकर कूच कर रही है। 2 गाड़ियां हमारे आगे आगे चल रही हैं। दिखाएं थोड़ा सर, आगे की तरफ दिखाएं थोड़ा। 2 गाड़ियां और 3 गाड़ियां पीछे आ रही हैं। और आप सभी से निवेदन करते हैं कि यही एक लास्ट टाइम है। इससे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन भारत में आजादी के बाद पहली बार हुआ है और दोबारा नहीं हो सकता शायद। इसलिए आप सभी लोग घरों से निकलें और इस आंदोलन को कामयाब बनाएं। हमारा मकसद किसी मोदी से या फिर सोनिया गांधी से नहीं है, ना ही किसी सत्ता दल से है। हमारा मकसद है व्यवस्था परिवर्तन करना। देश में 73 सालों से अभी तक लगातार सत्ता परिवर्तन होता रहा है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि पूरा देश एकजुट हो, किसान, जनता, जवान, मजदूर सबके सपनों का भारत बने। और ये तभी होगा जब हम वंशवाद की राजनीति को खत्म करने का संकल्प लेंगे। हर एक हिंदुस्तानी संकल्प ले कि मैं किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं करूंगा। बस इतना ही आपको काम करना है। जय हिंद, वंदे मातरम। तो साथियों, आप सभी ने देखा है वीडियो में कि ये जो नौजवान हैं, जो इसके फौजी हैं, ये बोल रहे हैं कि उनको पता है इस चीज़ के बारे में कि क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या चल रहा है। तो हम ये सोच रहे थे कि फौजियों तक शायद बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि फौजियों ने इस बात को सोचते हुए कि हालात कैसे चल रहे हैं भारत में। और जो आपने देखा दोनों वीडियो में देखा है कि जो इसमें जो कार में बैठे हैं जो फौजी, वो अपने पहले देखी वीडियो और पहले इसमें अपने देखा उसमें कि गाजीपुर से निकले हैं। उन्होंने बोला, सीधी बात कही है कि वो तो देश की जो हालात में जो कर रहे हैं वो सिर्फ देश की सेवा करने के लिए आए हैं, कोई किसी गुलामी करने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने बोला, सही बोला।
और हम उनका सलूट करते हैं उन्होंने कि उस बात को समझे, उस बात को पहचाना। उन्होंने बोला कि इस बारे में कि देश के अंदर सबसे बड़ा आंदोलन चलने वाला है, सबसे बड़ा आंदोलन आ रहा है जो भारत के अंदर पहली बार, शायद मेरे ख्याल में विश्व के अंदर पहली बार इतना बड़ा तगड़ा आंदोलन हो रहा है जो एक सिस्टम को हिला कर रखेगा। और जवानों का आंदोलन और किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है। एक वीडियो जो लद्दाख, जो मेरे ख्याल लद्दाख से आई शायद ये वीडियो हमारे पास में, ये व्हाट्सएप द्वारा आई है। इसमें जो नौजवान हैं ये बोल रहे हैं कि एक अर्बणव गोस्वामी बोलते हैं जिसको, ये मैं तो सीधा इसको ऐसा बोलता हूँ, ये अर्बणव गोस्वामी नहीं, ये गोबर स्वामी है। इसके मुंह से जब भी निकलता बदबू निकलता है। तो उसको उन्होंने चैलेंज किया, जो हमारे फौजी भाई हैं उन्होंने चैलेंज किया। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि ये फौजियों को भी इस बात का पता लग रहा है कि देश में चल क्या रहा है, और उन्होंने सीधी बात करके उनको सब पता है कि क्या चल रहा है। तो हमें इस बात का खुशी हुई है कि हमारी जो है फौजी जो है उनको इस बात का यकीन हो चुका है कि देश जो है गलत लोगों के हाथ में है, देश के हालात सही नहीं है। तो हमें पूरा यकीन है कि फौजी है, हम आपको सलाह नहीं दे रहे हैं, हम ना पुलिस वालों को सलाह दे रहे हैं, हम ना मिलिट्री वालों को सलाह दे रहे हैं। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि आप जो नौकरी कर रहे हैं, आप जो नौकरियां कर रहे हैं, आपकी काबिलियत की वजह से नौकरियां मिली आपको, आपके संविधान की वजह से नौकरी मिली आपको, आपकी बलबूते की वजह से नौकरी मिली आपको, सरकार की वजह से आपको नौकरी नहीं मिली है। इस बात का ध्यान रखें, आपकी काबिलियत की वजह से, संविधान की वजह से और आपकी एक अपने दम की वजह से नौकरी मिली है। तो इस बात का याद रखिए कि अगर जो भी संविधान के या मतलब जवान और किसान मिल जाएंगे तो ये देश बच जाएगा। नहीं तो अगर किसानों का आंदोलन फेल होता है तो ना जवानों की नौकरी रहेगी, ना पुलिस वालों की नौकरी रहेगी, सब बर्बाद हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस वाले भी और जवान भी और किसान भी मिल करके इस आंदोलन को कामयाब करेंगे। हम इनका दोनों भाइयों का, फौजियों का सलूट करते हैं जिन्होंने अंदर सच बोलने की हिम्मत आई है। और बहुत सारे फौजी हैं, बोलें सच बोलने से ही ये बच पाएगा देश, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं सभी से, देश के फौजियों से, मिलिट्री वालों से, किसानों से, इस मिल करके सबको इसको देश को बचाएं। और देश के गद्दारों को भी जो सज़ा देंगे वो पब्लिक देगी। आने वाले वक्त में कौन किसको सज़ा देगा क्या आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन याद रखेंगे कि इस देश के लिए ये फौजियों ने क्या किया। तो ये आपके लिए इम्तहान का घड़ी है। अगर इन किसानों का आंदोलन, याद रखिए इस बात को, किसानों का आंदोलन अगर समाप्त हुआ तो फौजियों की नौकरी, मिलिट्री वालों की नौकरी ख़त्म हो जाएगी। अगर आंदोलन कामयाब होता है तो बहुत कुछ बच जाएगा, बहुत कुछ आबाद हो जाएगा, बहुत कुछ सब आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं मिलिट्री वाले, पुलिस वाले किसानों का साथ देंगे और इसको आंदोलन को कामयाब करेंगे। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।